So let's start with this chapter, chapter number 7. The name of this chapter is triangle, right? So we all know about the triangles. So this triangle word is made up by the two words. One is tri and second word is angle. So tri means hota hai three, and angles we all know that about angles. We have discussed in the previous chapter 6 what is angle, right? So tri means three. If a figure is having three angle, that figure is called as triangle. So now let's start with this chapter triangle. What is triangle? So it is a figure like this, right? So this is a figure like this. So this figure is called as triangle. Triangles. So it is made up by the two words tri and angles, right? So if a figure tri and angles, it is made up by the two word tri से और angle word से बना है. So what is the meaning of the word tri in maths? Tri का मतलब क्या होता है? Three. Yes, tri means three. Tri means three, right? Angle we have already discussed. What is angle? तो ऐसी फिगर, अ फिगर विच इज हैविंग थ्री एंगल, कोई भी फिगर जिसमें तीन एंगल होते हैं, दैट फिगर इज कॉल्ड एज ट्राइंगल. तो आप ये फिगर देखो, दिस फिगर लुक लाइक दिस. सो दिस इज द एंगल ए, दिस इज एंगल एंड दिस इज एंगल. तो ये पहला एंगल, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. सो अ फिगर विच इज हैविंग थ्री एंगल, तो जिस फिगर में कितने एंगल हो? एंगल 3 एंगल हो, ऐसी फिगर, that figure is called as triangle. Yeah, we can say that sides, a figure which is having three sides, ऐसी figure जिसमें three sides हो, that figure is called as triangle. Or we can say that vertices, if there are three vertices in a figure, right? So what is vertices? So if you look at this, where these two ray meet at a point, एक point A पे meet किए हैं, that point is called as vertex. So where the two lines meet at a point, this is called as vertex A, and this C, this point is also called as vertex, and the plural form of vertex is vertices. तो A B C तीनों को combinedly बोल देंगे हम लोग vertices, right? So ऐसी कोई भी फिगर जिसमें या तो तीन एंगल आते हों, जिसमें तीन साइड्स आती हों, जिसमें तीन वर्टाइसेस आते हों, that figure is called as triangle, right? And in this chapter we are going to discuss about the various type of triangle and the basic and we focus in this chapter, we focus on the congruence triangle. So we discuss in detail about the congruence triangle. Congruent triangles के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, right? It is also a type of triangle. Now look at this, look at this written on the screen, introduction. So anyone, could you please read this? Who is going to read it? Sir, I can. Who is this? May I? Sir, sure. Acha, Sivans. Okay, Sivans. Okay, Divyanshu, you read it later. Sivans, could you please read it on the screen? Yes, sir. Introduction. You have studied about triangles and their various properties in your earlier classes. You know that a closed figure formed by three intersecting lines is called a triangle. Tri means three. A triangle has three sides, three angles, and three vertices. For example, in a triangle ABC, denoted as triangle ABC, AB, BC, CE, CA are the three sides. Angle A, angle B, angle C are the three angles, and A, B, C are three vertices. In chapter 6, you have also studied some properties of triangles. In this chapter, you will study in details about the congruence of triangles, rules of congruence, some more properties of triangles, and inequalities in a triangle. You have already verified most of these properties in earlier classes. We will now prove some of them. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग वी स्टडीड अबाउट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, वी स्टडीड अबाउट द रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, वी स्टडीड अबाउट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल, एंड वी स्टडीड अबाउट द इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल. ट्रायंगल्स में इनइक्वालिटीज, राइट? और इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया है व्हाट इज ट्रायंगल, दैट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी. सो व्हाट इज ट्रायंगल? तो ऐसी फिगर जिसमें तीन साइड्स हो, थ्री साइड्स हो, या थ्री एंगल्स हो, थ्री वर्टाइसेस हो,
उस फिगर को बोलते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की एक डेफिनेशन भी दी है इन्होंने, अ क्लोज्ड फिगर formed by three intersecting lines। एक तीन इंटरसेक्टिंग लाइन से जो एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगल, राइट। ट्राई मीन्स थ्री, दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। एक इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बताई है, इफ यू लुक एट दिस, तो ट्रायंगल की साइड्स को कैसे डिनोट करते हैं। So how to denote the sides? If you look at this, so this is A to B. A से हम लोग यहाँ पे B पे आ रहे हैं, right? So these sides can be denoted as इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे, एक लेटर A लेंगे, एक लेटर B लेंगे। So like this we write the sides, right? Or we can write it as BA also, right? Second आप देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, if I am talking about the triangle ABC, सो हमें क्या करना है, हमें ए से चलना है, फिर बी पे जाना है, ए से बी पे जाना है, और बी से सी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, राइट, और फिर वापस ए पे जाना है। सो देन वी हैव फॉर्म्ड द क्लोज्ड फिगर। हाउ? ए टू बी, बी टू सी, बी टू सी एंड सी टू ए। अगेन हम लोगों को ए पे ही जाना है। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं, एक सपोज अ पर्सन इज हियर, हु इज दिस? फेस से समझ में आ रहा है आपको? ये किसका फेस Yes, है? sir. कौन है? डोरेमोन, यस यस, डोरेमोन। सपोज ये सही से बनाया नहीं पाया हूं मैं, अभी मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ विद इन 2-3-4 डेज। कल वाली बिल्ली लग रही है। तो अभी मैं इसको एग्जैक्ट बनाऊंगा फिर। अभी सपोज यहाँ पे ये डोरेमोन यहाँ पे है, अभी ये डोरेमोन की एग्जैक्ट फिगर नहीं है, सो आई एम जस्ट लर्निंग इट हाउ टू मेक इट। सो विद इन 3-4 डेज ये मैं बनाऊंगा। ए से बी पे गया डोरेमोन, बी से सी पे गया, और फिर वापस ए पे आ गया, राइट। तो ये बिल्ली है, ये यहाँ पे आ गई। तो अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए से बी को साइड को डिनोट करेंगे ए बी से, फिर ये बी सी साइड को डिनोट करेंगे, साइड को, इस साइड को बी सी से, और इस साइड को डिनोट करेंगे सी ए से, लाइक दिस, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द ट्रायंगल एबीसी, ए बी, बी सी एंड सी ए, राइट। अब इसके एंगल्स को कैसे डिनोट करते हैं? एंगल्स का बेसिकली एक साइन होता है इस तरह से, ये लाइक दिस। सो दिस साइन, दिस इज द सिंबल फॉर टू डिनोट द एंगल, राइट। एंगल ए पे, यहाँ पे तीन एंगल बनेंगे, एक ए के ऊपर बन रहा है, एक बी के ऊपर बन रहा है, एक सी पे। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, राइट। अब वर्टाइसिस है, यहाँ पे तीन वर्टाइसिस हैं, तो वर्टाइसिस को सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई थी यहाँ पे, एंड दिस थिंग वी ऑलरेडी नो दैट, राइट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस। Now look at this here, congruence of triangle. So now let us discuss what is congruence of triangles. Divyanshu, could you please read this written on the screen? Yes, sir. Congruence of triangles. You must have observed that two copies of your photographs of the same size are identical. Similarly, two bangles of the same size, two ATM cards issued by the same bank are identical. You may recall that on placing a 1 rupee coin on another minted in the same year, they cover each other perfectly. Do you remember what such figures are called? Indeed, they are called congruent figures. Congruent means equal in all respect or figures whose shapes and size are both the same. Now draw two circles of the same radius and place one on the other. What do you observe? They cover each other completely and we call them as congruent circles. Okay. सो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। आप अपने पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ लीजिए और उनको ऊपर, एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे, तो क्या वो आइडेंटिकल आएंगे? क्या उनका साइज सेम है? उनका साइज सेम होगा। क्या Yes, उनका शेप सेम है? शेप एंड साइज, यस, बोथ आर आइडेंटिकल। Yes, sir. आइडेंटिकल मीन्स सेम। सो दैट फोटोग्राफ्स आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट, right? If you take the two bangles of the same size and put it on each other, so is they exactly fit on each other? Yes. Why? Because their size is same. If you take the, इन्होंने एग्जांपल दिया ATM कार्ड्स। ATM कार्ड्स अगर आप लेते हैं सेम बैंक के, अगर अब आप उनको पुट करेंगे एक दूसरे के ऊपर, so they are of the same size,
राइट, एटीएम कार्ड्स आर आइडेंटिकल होते हैं, राइट। यू मे रिकॉल ऑन, अगर आप एक कॉइन को लेते हैं, सपोज इफ यू टेक अ कॉइन ऑफ 1 रुपी एंड पुट इट द कॉइन ऑन दैट, उसके ऊपर एक कॉइन को रखते हैं आप, सो वो क्या कंप्लीटली कवर कर लेता है कॉइन? क्या एक कॉइन 1 रुपी का एक दूसरे कॉइन को 1 रुपी के कॉइन को कंप्लीटली कवर अप कर लेगा? Yes, sir. यस, कंप्लीटली कवर अप कर लेता है। सो इफ इट कंप्लीटली कवर कर लेता है, सो देन दैट आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट। लेकिन आपने देखा होगा 1 रुपी का एक कॉइन, एक छोटा कॉइन भी आता है जो अभी मार्केट में उसको लेने से मना करते हैं कि ये नहीं चल रहा है। एक छोटा कॉइन 1 रुपी का एक छोटा कॉइन भी होता है, देखा है आप लोगों ने किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. एक छोटा कॉइन होता है, एक बड़ा कॉइन होता है 1 रुपीज का। तो वो कॉइन्स सेम ईयर के होने चाहिए, क्योंकि अगर वो उन दोनों कॉइन्स को आप देखेंगे 1 रुपीज के, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज देयर साइज आर डिफरेंट, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कॉइन इन द सेम ईयर, सो द कॉइन मस्ट बी इन द सेम ईयर, कवर ईच अदर। अगर कॉइन्स एक दूसरे को, अगर आप 10 रुपीज के कॉइन पे 5 रुपीज का कॉइन रखेंगे, सो इट कवर ईच अदर और नॉट? No, sir. नो, कवर नहीं करेगा। इज दैट कॉइन्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट? No. No, yes, that coins are not congruent. So do you remember what such figures are called? ऐसी फिगर्स को क्या बोलेंगे जो दो एटीएम कार्ड्स हैं सेम साइज के, दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ हैं, दो बैंगल्स हैं, दो कॉइन्स हैं। सो indeed they are called as, that figures are called as congruent figures. उन्हीं फिगर्स को congruent figures बोलते हैं, राइट। congruent का मतलब क्या होता है? दिस congruent word means equal in all respect, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, हर तरीके से इक्वल होने चाहिए, शेप में भी साइज में भी। शेप एंड साइज मस्ट बी इक्वल, एंड इफ द टू फिगर्स हैविंग द शेप, पहली चीज शेप, सेकंड थिंग साइज, अगर उनकी शेप भी सेम है, उनका साइज भी सेम है, दैट टू फिगर्स आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट फिगर, राइट। Now draw two circles of the same radius and place one on the another. What do you observe? They cover each other completely and we call them as congruent circle. Yes, they cover each other. अगर रेडियस सेम होगी दो सर्कल की, तो रेडियस सेम होगी तो दे कवर each other and we can call it as congruent or not? Yes or no? Yes, sir. Yes, we can say it as congruent triangles, congruent circles. Now look at this. Prerna, could you please read this written on the screen? Look at this written on the screen here. Repeat this activity by placing one square on the other with sides of the same measure, or by placing two equilateral triangles of equal sides on each other. You will observe that the squares are congruent to each other, and so are the equilateral triangles. You may wonder why we are studying congruence. You all must have seen the ice tray in your refrigerator. Observe that the molds for making ice are uncongruent. The cast used for molding in the tray also has congruent depressions. Maybe all are rectangular, all circular, or all triangular. So whenever identical objects have to be produced, the concept of congruence is used in making the part. ओके, सो अगर आपने एक एक्टिविटी देखी थी, सर्कल आप अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे, सेम टाइप के सर्कल्स, और उनको कट कर लीजिए अपनी नोटबुक में से। कट करने के बाद एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना, यू विल गेट दैट आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। इसी तरह की आप एक्टिविटी कर सकते हैं। सपोज एक आप अपनी नोटबुक लेंगे, नोटबुक में से एक आइडेंटिकल पेज कट करेंगे, एक पेज में से सपोज एक पेज निकाल लेंगे, इससे उस पेज को एक सेम साइज का स्क्वायर कट करेंगे आप, और दो स्क्वायर कट करना सेम साइज के। तो आप एक दूसरे के ऊपर अगर उनको पुट करोगे तो दे कंप्लीटली कवर ईच अदर, राइट। तो ये एक्टिविटी हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को आप कट करके देख सकते हैं, इफ सेम साइज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इफ यू कवर दैट, देन इफ दे कवर ईच अदर, देन इट मींस दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। शेप सेम होगा, शेप सेम होने का मतलब है, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है तो ये भी क्या होना चाहिए, इफ इट इज अ स्क्वायर। यहाँ पे शेप क्या है इन दिस केस, व्हाट इज शेप ऑफ दिस स्क्वायर, एंड व्हाट इज द शेप ऑफ दिस, द शेप ऑफ बोथ इज स्क्वायर। दोनों की शेप क्या है, स्क्वायर है। तो पहले तो हमने चेक किया शेप सेम आ रही है,
फिर सेकंड चीज क्या चेक करते हैं, साइज, इसका साइज और इसका साइज। सपोज इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की, ऑल साइड्स आर, इसकी भी साइड से 4 सेंटीमीटर, सो साइड इज 4 सेंटीमीटर, साइज इज 4 सेंटीमीटर इस साइड। सो इज शेप है, इट इज शेप और साइज क्या सेम है इन दोनों फिगर्स का? Yes, sir. यस, sir. सेम है। तो इन फिगर्स को क्या बोलेंगे? 130 cm. दिस फिगर्स They are आर कॉल्ड congruent. एज congruent figure. Yes, these figures are called as congruent figures, right? Now, you may wonder, when we are studying congruence, you all must have seen the ice tray in your refrigerator. Ice tray आपने देखी होगी अपने रेफ्रिजरेटर में। Observe the molds for making ice are all congruent. जो आइस क्यूब होती हैं उसमें आपने ट्रे में देखेंगे छोटे छोटे, अगर हम सभी पीसीस को निकालेंगे, all the pieces are identical, right? The cast used for molding in the tray also congruent depression. जो उसमें जो बॉक्स बनाए जाते हैं वो छोटे छोटे, उनका जो डिप्रेशन है वो सेम होता है, वो सेम साइज के बनाए जाते हैं। इसीलिए जो आइस के जो क्यूब्स बन जाते हैं वहां पे फ्रीजर से निकालते हैं उसको, ट्रे को, तो वो क्यूब्स आपको सेम दिखाई देते हैं। इज दैट क्यूब्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट? जो आइस क्यूब्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या नहीं होते हैं? Yes, sir. Congruent होते हैं, right? So whether identical object have to be produced, the concept of congruence is used in making the cost, right? In making the cost. Now the remaining things we will discuss in the next class. It's time up, so that's all for today. Thank you all for joining. Rest of the thing in the next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Okay, welcome.